Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome to class of second year. As you know, we are on with our topics of grammar along with our textbook. We are studying sentence as previously और हमने start किया था with the definition of sentence. उसके बाद हमने we studied its components. After components we went through a comprehensive analysis of sentence in which we studied concept of subject, predicate, subject word, number of attributes, etc. On the basis of that analysis with the help of subject and predicate, we defined clauses or we identified parts of sentence as clauses, right? Clause kya tha? The part of sentence which has a subject and predicate of its own. जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा था फॉर एग्जांपल ही कुड नॉट कम टू क्लास बिकॉज ही हैड टू गो समवेयर. तो अब इसमें जो थे हमारे पास दो क्लॉज जो थे वो आ गए थे. ठीक है, तो इसी तरह हमने क्लॉज पढ़े. उसके बाद हमने क्लॉज की टाइप्स पढ़ी. वी स्टडीड टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, बेसिक टाइप्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. Dependent clause is that clause which depends on independent clause for completion of its meaning. On the other hand, independent clause is the clause which does not need completion. It is already complete and can stand as a sentence by itself. On the basis of these types of clauses, we will study kinds of sentences, right? Kinds of our topic for today is kinds of sentences, right? These kinds have been devised on the basis of independent and dependent clauses. These kinds are on the basis of independent and dependent clauses. के एक सेंटेंस में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उसकी बेस के ऊपर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमने इसीलिए स्टार्ट से बिल्कुल विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस किया था, फिर कंपोनेंट्स, और उसके बाद हमने एनालिसिस इसीलिए किया था कि अब हमारे पास आगे जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है और इनकी सब काइंड्स भी आ जाएंगी आगे. तो दे ऑल डिपेंड और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज के आपको क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन जो है इट मस्ट बी वेल वर्स्ड ताकि जो है वो आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस जब आप करें तो आपको उस पर दिक्कत ना हो. सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज. फर्स्ट काइंड, अ सेंटेंस which has one set of subject and predicate only. A sentence which has one set, देखें I have bracketed this one set of subject and predicate only is called simple sentence. A sentence which has one set of subject and predicate only is called simple sentence. यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास एक सब्जेक्ट और उसके साथ प्रेडिकेट हो, that is called simple sentence, right? For example, we played the match after the rain. We played the match after the rain. We is subject और played से लेकर rain तक this whole is predicate. We is subject और played से लेकर rain तक this whole is predicate. This is called simple sentence. Take another example. He could not come due to illness. He could not come due to illness. He is the subject और could not come से लेकर illness तक this whole is predicate. This is called a simple sentence. By language, we don't call a sentence simple which has simple meaning or sense. वो छोटी क्लासेस के लिए कहा जाता है कि जी आप सिंपल सेंटेंस लिखें जिसका मीनिंग सिंपल हो, सेंस सिंपल हो, फाइन, वो भी ठीक है. बट नाउ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, now onwards, your simple sentence is the one
which has one set of subject and predicate. Generally when we advise the students about sentence writing, तो हम कहते हैं कि जी आप सिंपल सेंटेंस लिखें, शॉर्ट सेंटेंस लिख लें। मतलब कहने का ये है कि आप कोशिश करें कि आप एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बेस के ऊपर सेंटेंस लिखें। There are many students have the habit of writing sentences by adding when, and, because etc करके वो कंबाइन करते रहते हैं। तो अब आपने माइंड में ही रखना है कि try to write as smartly as you can so that your errors are avoided. तो आपने को जो है वो आपकी राइटिंग जो है it should be based more on simple sentences as compared to others. तो simple is the sentence which has one set of subject and predicate only. These are two sentences written in front of you. अब आपने माइंड में ये रखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में एक चीज है, उसे हम कहते हैं कन्वर्जन। क्या चीज कहलाती है? कन्वर्जन। ये भी आपकी क्लास का कन्वर्जन जो है इट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव पेपर। यानी कन्वर्जन फ्रॉम वन काइंड ऑफ सेंटेंस टू अदर और वन टाइप ऑफ सेंटेंस टू अदर। ठीक है, तो एक सेंटेंस की एक काइंड से दूसरी काइंड पर जब हम को कन्वर्ट करेंगे, वो आप सब्जेक्टिव टाइप में किस तरह कहते हैं कि एक सेंटेंस लिखकर कहते हैं कि दिस सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड into this kind as, और नीचे 4 सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे। इन दिस लेक्चर आई हैव ट्राइड कि मैं 2 सेंटेंसेस लेकर उनको चारों काइंड्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दूं। वही वर्ड्स होंगे, वही आइडियाज होंगे, कहीं कहीं थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन आती जाएगी। तो इसके लिए आपका अब ये मल्टीपल टॉपिक्स चल रहे हैं, ग्रामर है, मैं इसलिए इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये मल्टीपल टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए आप इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ें। क्योंकि सिर्फ ये एक टॉपिक नहीं है कि आपको आ जाएगा जी कि बताएं काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सी है। आपका एट दिस सेकंड ईयर लेवल यू हैव सब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कपल्ड टुगेदर। अब कंपाउंड सेंटेंसेस की टाइप्स हैं वो आएंगी, इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की टाइप्स हैं वो बाय पार्ट ऑफ स्पीच है, वो भी हमने इंशाल्लाह स्टडी करेंगे आगे चलकर। तो आपने इस चीज को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और बड़े जो है वो कीननेस ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपने इसको जो है वो करना है ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। अब आई हैव रिटन 2 सेंटेंसेस, वी प्लेड द मैच आफ्टर द रेन और ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस। देखें, मेरा एक जो प्रीवियस लॉकडाउन था मार्च अप्रैल वाला, उसमें मैंने एक लेक्चर फर्स्ट ईयर के लिए रिकॉर्ड कराया था, दैट वाज अबाउट फ्रेज। उसमें क्लॉज का भी है लेकिन एक लेक्चर फ्रेज का भी है। आई होप कि मैंने क्लासेस में भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो फ्रेज का लेक्चर है, आप लोगों ने करना यह है कि फर्स्ट ईयर का वो लेक्चर जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड है उनमें वो फर्स्ट ईयर का लेक्चर अवेलेबल है फ्रेज, वो आप लोगों ने लाजमी सुन लेना है, क्लॉज का भी साथ ही सुनने। यही चीजें हैं जो आगे चलकर आपके करेक्शन ऑफ एरर्स में भी आती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आती हैं, आपको हेल्प आउट करेंगी। तो कन्वर्जन जो है वो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव पेपर। इसीलिए मैंने जो है वो सिंपल जो सेंटेंस के लिए जो 2 सेंटेंस लिखे हैं थ्रू आउट ऑल द काइंड्स, कोशिश मैं यही करूंगा कि वो उन्हीं को मैं कन्वर्ट करता रहूं। तो दिस इज सिंपल सेंटेंस, a sentence which has one set of subject and predicate only. We is subject, played the match after the predicate, he is subject, could not come due to illness is predicate. Kind 2, a sentence which has one independent clause and one or more dependent clauses. A sentence which has one independent clause and one or more dependent clauses is called complex sentence. कम्प्लेक्स हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं उस चीज के लिए विच इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, जो मुश्किल बने। आप स्टूडेंट्स जिसका आपस में कर रहे होते हैं कि दिस क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड, दिस स्टेटमेंट इज कॉम्प्लेक्स, दिस आइडिया इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स मींस के इट हैज, उसमें ऐसी चीजें हैं जो आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं लेकिन उनको रिलेट करके हमने एक चीज जो है वो बनाई है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स concept. This is the concept of complex. Likewise is the concept of complex sentence. A sentence which has one independent clause followed by one or more dependent clauses. यानी 2
डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेज जो हैं वो इसमें ऐड हो रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब एक सेंटेंस में आपके पास एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है। ये भी आपने याद रखते हैं कि कंप्लेक्स में इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ओनली वन, उसके साथ आप वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस जितने भी ऐड कर लें इट डजंट मैटर, लेकिन उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज शुड ओनली बी वन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंप्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड द मैच व्हेन द रेन स्टॉप्ड। वी प्लेड द मैच व्हेन द रेन स्टॉप्ड। एक और एग्जांपल देख लें, he could not come because he was ill. He could not come because he was ill. अब if we look at this sentence, यहां पर मैं आपको दो तीन कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे बताना चाह रहा हूं। सबसे पहला जो था ओरिजिनल जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज काइंड ऑफ सेंटेंस, और उसमें हमारी काइंड है complex. Why is it complex? Because it is combination of two different types of clauses. Therefore, it is called complex sentence. We played the match or he could not come. Both these are independent clauses. Both these are independent clauses. Because if we separate them from the original larger sentence, so they can stand independently as sentences. We played the match, he could not come, right? These are independent clauses. Look at these clauses. When the rain stopped or because he was ill, both these are dependent clauses. If we remove this part of sentence, सिर्फ इनको छोड़ दें, when the rain stopped, it will remain incomplete. Because he was ill, it remains incomplete. Therefore, these are dependent clauses. On the basis of combination of this independent and dependent clause, we get a sentence which is complex, right? This is independent clause, this is dependent clause. We is the subject, he is the subject, played the match predicate, could not come predicate. The rain is subject, stop predicate, he is the subject, was ill predicate. When and because they are conjunctions, this we have studied earlier. अब जो एक और चीज मैं आपको यहां बड़ी सिग्निफिकेंट बताना चाह रहा हूं, मैंने एक चीज यहां के ऊपर लिखी है कन्वर्जन। ये थोड़ी सी चूंकि बोर्ड की स्पेस अवेलेबिलिटी का इशू है इसलिए जरा दरमियान में चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। एक चीज हमने लिखी है, मैं लिखी है कन्वर्जन। देखिए इसमें आपके पास एक पार्ट था, वी प्लेड द मैच आफ्टर द रेन। आफ्टर द रेन इज अ फ्रेज, ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस। ड्यू टू इलनेस इज अ फ्रेज। वो मैंने आपको रेफर किया है कि आप मेरा लेक्चर फर्स्ट ईयर की रिकॉर्डिंग में फ्रेज का लेक्चर निकाल कर सुन लें, आपको ये कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो वी कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, वी प्लेड द मैच आफ्टर द रेन। अब हाउ I have converted this simple sentence into complex. Look at this sentence, we played the match. ये तो दोनों में कॉमन है। हमने किया क्या कि ये जो पार्ट था आफ्टर द रेन, ठीक है, इसको फ्रेज में से निकालकर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एज अ क्लॉज, यानी हमने इसमें सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया, प्रेडिकेट भी ऐड कर दिया, द रेन सब्जेक्ट ऐड कर दिया और स्टॉप वर्ब ऐड कर दिया। Whenever there is addition of verb, that expression converts from a phrase to a clause. जहां कहीं भी verb ऐड हो जाएगा तो be it main verb और helping verb, तो वो जब ऐड हो जाएगा उसका मतलब ये है कि अब वो फ्रेज नहीं रहा बल्कि अब वो क्या बन गया, क्लॉज बन गया। तो इसी ये देखें, वी प्लेड द मैच दोनों में कॉमन है, सिंपल सेंटेंस में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। कन्वर्जन कहां आ रही है? कन्वर्जन यहां आ रही है कि हमने आफ्टर द रेन जो था इस फ्रेज को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ क्लॉज और क्या किया, द रेन स्टॉप, और हमने इन दोनों क्लॉजेस को इस कंजंक्शन व्हेन के थ्रू ज्वाइन किया है। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। लुक एट दिस सेकंड सेंटेंस, ही कुड नॉट कम बिकॉज he was ill। अब इसमें देखें, he could not come due to illness। due to illness में ना हमारे पास सब्जेक्ट है ना हमारे पास प्रेडिकेट है, बल्कि हमारे पास एक फ्रेजल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया
इनटू अ क्लॉज। क्लॉज के थ्रू कैसे हमने कन्वर्ट किया, वी एडेड अ सब्जेक्ट, वी एडेड अ प्रेडिकेट, और हमने उसमें ये हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया। जब वर्ब ऐड कर दिया तो उसके लिए हमने सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट ऐड और वर्ब ऐड करने से इट बिकम्स अ क्लॉज। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि वी आर स्टडिंग मल्टीपल टॉपिक्स टुगेदर, तो उसमें हमारे पास जो कन्वर्जन है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट का पेपर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट है, तो अब उसमें देख लें। तो हमारे पास हाउ वी हैव कन्वर्टेड अ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल मेथड इज लुक एट, फाइंड आउट द फ्रेज एंड देन कन्वर्ट द फ्रेज इनटू अ क्लॉज। क्लॉज में कन्वर्ट करने का मेथड, सिंपल तरीका यह है कि आप उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर दें, आपका फ्रेज क्लॉज बन जाएगा। Anyways, coming back to our original topic of kind of sentence, this is called a complex sentence. Kind 3, a sentence formed by combining two or more independent clauses only. देखिए हमने टाइप 2 पढ़ी थी, काइंड 2 पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था और उसके साथ जो है वो वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस थे, राइट? यानी इट इज ए कॉम्बिनेशन। जब मैंने आई हैव एडेड मार्क ऑफ प्लस, ये जरा इनको क्लियर करके दिखा दें, ये मैंने प्लस का मार्क ऐड किया हुआ है, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस का। ऑन द अदर हैंड यहां मैंने सेंटेंस पूरा नहीं लिखा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, तो वो आप खुद ही ऐड कर लें। अ सेंटेंस व्हिच हैज टू और मोर independent clauses only is called a compound sentence. कंपाउंड वो चीज होती है, उस चीज का कॉम्बिनेशन होता है जो दोनों चीजें तकरीबन जो है जिनका लेवल एक ही हो। यहां के ऊपर इस तरह है कि ये बोथ द क्लॉजेस दे आर इंडिपेंडेंट। व्हेन वी जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टुगेदर, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेकर आते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो हमें जो है वो दोनों क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट बना लेती है। ये कंजंक्शंस क्या है, इसका भी इंशाल्लाह हम, हमारा नेक्स्ट जो ग्रामर का टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कंजंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं इन बोथ केसेस। और ग्रामर का आपको मैंने बता दिया कि बहुत ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह अपनी स्टडी उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ये आपने देख लें कि अ सेंटेंस व्हिच हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ओनली। अब इसमें देयर इज नो डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कोई नहीं है, राइट? मोस्टली आपकी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें एंड, बट, और, नॉर, ऑल्सो, सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर, और, ये सारी की सारी आपकी जो है दे मेक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, राइट? व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, हुज, बिकॉज, एटसेट्रा, काफी सारी हैं, दे ऑल मेक डिपेंडेंट क्लॉजेस। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहां हमने डिपेंड किया है क्लॉज को, तो उसमें हमने ऐड किया व्हेन, और इसी तरह दूसरी हमने कंजंक्शन ऐड की बिकॉज, ठीक है? यहां पर देख लें, द रेन स्टॉप्ड एंड वी प्लेड द मैच। द रेन स्टॉप्ड एंड वी प्लेड द मैच, राइट? अब देखें, बोथ दीज क्लॉजेस दे आर इंडिपेंडेंट, राइट? The rain stopped and we played the match. Both can be written separately. He was ill, so he could not come. Both can be written separately. This is called a compound sentence, right? In which both the clauses they are independent. ठीक है? They have been joined with conjunction and, और ये वाला जो है यहाँ के ऊपर conjunction is so. ठीक है? This is compound sentence. आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कंपाउंड्स, ठीक है? उनका आप क्वालिटीज पढ़ते हैं कि दे रिएक्ट एट इक्वल लेवल, ठीक है? इसी तरह हम बाज़ दफा कंपाउंड सेंटेंसेस यूज करते हैं, कंपाउंड नाउन भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक नाउन यूज किया कि जी क्लासरूम। क्लासरूम में क्लास भी नाउन है, रूम भी नाउन है, बोथ आर ऑफ इक्वल लेवल। जब हमने इनको एक ही बना दिया तो इट बिकम्स अ कंपाउंड नाउन। यानी लाइकवाइज हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें भी यही चीज है कि जब दो इंडिपेंडेंट लेवल के सेंटेंसेस आपस में हम एक ही में लेकर आएंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बन जाएंगे, तो इट विल बी कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। दीज एग्जांपल्स आर रिटन अगेन। अब इसमें फिर हम कन्वर्जन पर जाएंगे। देखिए हमारे पास ओरिजिनल सेंटेंस था वी प्लेड द मैच आफ्टर द रेन, और ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस,
वी प्लेड द मैच आफ्टर द रेन और ही कुड। हमने इसको कन्वर्ट किया इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय कन्वर्टिंग दिस फ्रेज इनटू क्लॉज। सेम इज द केस हियर। हमने जो है वो इस तरह किया कि द रेन स्टॉप्ड एंड वी प्लेड द मैच, मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। आप अरेंजमेंट अल्टर कर लें, चेंज कर लें, आगे पीछे कर लें, इट डजंट मैटर। आप इसमें भी लिख सकते हैं व्हेन द रेन स्टॉप्ड वी प्लेड द मैच, बिकॉज ही वाज इल ही कुड नॉट कम। हम आप इधर अरेंजमेंट चेंज कर लें, क्लॉजेस को आप जो है वो बैक एंड फोर्थ कर लें, इट डजंट मैटर, लेकिन उसका मीनिंग जो है इट शुड रिमेन द सेम। अब देखें इसमें हमने प्लेड द मैच को बाद में लिख लिया और द रेन स्टॉप्ड पहले लेकर आ गए एंड वी जॉइंड दीज टू क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, ठीक है। तो हमारी जो कन्वर्जन थी फ्रॉम सिंपल वी प्लेड द मैच आफ्टर द रेन को हमने कर दिया द रेन स्टॉप्ड, हमने क्लॉज ऐड कर दिया, द रेन इज सब्जेक्ट, स्टॉप इज प्रेडिकेट, कंजंक्शन एंड की एंड, और उसके बाद वी इज द सब्जेक्ट, प्लेड द मैच इज प्रेडिकेट। तो हमारे पास वी गॉट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंट विद कंजंक्शन एंड। लाइकवाइज दूसरा देखें, he could not come due to illness, हमने कर लिया he was ill, हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड करके किया, was ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से हमारा इमीडिएटली ये क्लॉज में कन्वर्ट हो गया, so he could not come, तो वो कॉलेज नहीं आ सका। ये जो था हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज था। तो we have joined these two independent clauses with the help of conjunction so, ठीक है। तो अब ये देख लें, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। आपको इसके दोनों क्लॉजेस और इनके दोनों क्लॉजेस के लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस का फर्क नजर आ रहा है। एंड वी प्लेड द मैच, ठीक है, सो ही कुड नॉट कम, ये इक्विवेलेंट है विद द रेन स्टॉप्ड और ही वाज इल के। ऑन द अदर हैंड व्हेन द रेन स्टॉप्ड और बिकॉज ही वाज इल, ये ऑलरेडी ही इनकम्प्लीट है और ये डिपेंड कर रहे हैं उस इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। ऑन द अदर हैंड ये दो इक्वल लेवल क्लॉजेस हैं जिनको हमने किया, मीनिंग सेम है। अब देखें आपको ये कन्वर्जन भी आ सकती है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेकर कह सकते हैं कि दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू या चेंज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस एज। तो वो क्या चीज हो जाएगी, वो उसमें आपने देख लेना है, एक तो कंजंक्शन चेंज करनी है, आप उससे करेंगे। दूसरा, अगर आपको अरेंजमेंट भी उसमें उनमें जो है गिवन है, उनमें से कोई अरेंजमेंट भी आपको जो है वो कन्वर्ट करना पड़े, इट डजंट मैटर, ये इसकी कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट। अगर तो सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पर जा रहे हैं तो आपको क्लॉज ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की इंटर कन्वर्जन है उसके लिए आपको कंजंक्शन चेंज करनी पड़ेगी, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह आपको इंडिपेंडेंट लानी पड़ेगी, या अगर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसकी जगह अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस कन्वर्ट करना पड़ रहा है कॉम्प्लेक्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसकी जगह आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करनी पड़ेगी। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड आपको क्लॉज ऐड करना पड़ेगा, जबकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के आपस की कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शन मॉनिटर करनी पड़ेगी, उसको चेंज करना पड़ेगा। दिस इज कन्वर्जन ऑफ बोथ। तो ये आपका जो है दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। लास्ट एंड फोर्थ काइंड, अ सेंटेंस which has one dependent, which has one dependent and two or more independent clauses। देख लें, it is opposite to complex sentence। complex sentence में हमने कहा था one independent, इसमें है हमारे पास one dependent, राइट। कॉम्प्लेक्स में हमने कहा था वन और मोर डिपेंडेंट, इसमें हमारे पास टू और मोर इंडिपेंडेंट, यानी वो सिचुएशन क्या हो गई, उलट हो गई। इज कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहलाता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंपाउंड डैश कॉम्प्लेक्स। तो उसकी रीजन क्या है, रीजन उसकी ये है कि जब एक ही सेंटेंस में हम 3 क्लॉजेस ऐड कर रहे हैं, अब ये ज्यादा लेंथी है इन तीनों के मुकाबले पर, वी आर एडिंग 3 क्लॉजेस, ठीक है। 3 क्लॉजेस ऐड जब हमने कर दिए उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जब वो कॉम्बिनेशन ज्यादा हो गया। और अब क्या बना, अब देखें अगर हमारे पास 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो उससे तो बन जाएगा कंपाउंड। जैसे हम ये ऊपर पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जब एक सेंटेंस में डिपेंडेंट के अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब एक सेंटेंस में हमारे पास 2 या उससे ज्यादा
इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ गए, वो तो बन गया कंपाउंड पार्ट, राइट। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास वी हैव वन डिपेंडेंट क्लॉज एज वेल। वो जो एक डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने ये इस एग्जांपल में स्टडी किया था कि जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे किया था कि देखें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और उसके साथ डिपेंडेंट, यानी जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपस में मिले तो हमारे पास बन गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन जब दो इंडिपेंडेंट आपस में मिले वो हमारे पास बन गया कंपाउंड। सेम अब हमने एक ही सेंटेंस में 3 क्लॉज ऐड कर दिए हैं, तो उसमें 2 इंडिपेंडेंट हैं। अगर 2 डिपेंडेंट होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट और साथ एक डिपेंडेंट आ जाएगा, उसको हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। लुक एट दिस एग्जांपल, वही सेंटेंस है पहले वाला, द रेन स्टॉप्ड एंड वी प्लेड द मैच बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर इट। ये हमने अब एक्स्ट्रा ऐड किया। पहले हमने जितने भी किए हैं वो हमने 2 क्लॉजेस पर किए हैं, लेकिन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स उस वक्त बनेगा जब आपके पास 3 क्लॉजेस हो जाएंगे। इसके लिए अब हमने ये एक थर्ड क्लॉज ऐड की है। अब दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, लेकिन दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये जो 2 इंडिपेंडेंट है दे कंबाइन, एक सेंटेंस हमारे पास एक ही है, ठीक है। तो ये जो 2 इंडिपेंडेंट है इससे तो बन गया कंपाउंड पार्ट, लेकिन एक साथ डिपेंडेंट अटैच करने से ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स पार्ट। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल, वही इलनेस वाला सेंटेंस जो था, सिंस ही वाज इल he could not come and missed his classes. Since he was ill, this becomes dependent clause. He could not come, independent clause, and he missed the classes be independent clause, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने अब डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखा, अरेंजमेंट आपको बताया हुआ, आप चेंज कर लें। डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखा, उसके साथ हमने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऐड कर दिए, यहां से यहां तक बन गया कॉम्प्लेक्स पार्ट, और यहां से यहां तक हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड पार्ट। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। Again, you may be asked to convert any dependent, any complex or compound sentence into a compound complex और vice versa। vice versa का मतलब होता है कि उलट, यानी आप जो उसका है जो पहले था उसका रिवर्स, ठीक है। तो ये आप देख लें, इसकी कन्वर्जन के लिए हमने इसके ऊपर ज्यादा एनालिसिस किया, ठीक है। ज्यादा इसलिए किया क्योंकि अगर वो आपको कंपाउंड टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कह दें या कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कह दें, इट मींस के आपको उसने पहले 2 क्लॉजेस वाला दिया है, ठीक है, और उसको अब आपने 3 में कन्वर्ट करना है, और उसकी जो वो ऑब्जेक्टिव में आपको जो चारों चॉइसेस देगा उसमें देयर मे बी 3 क्लॉजेस, लेकिन आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक डिपेंडेंट और 2 इंडिपेंडेंट हो। ये याद रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि एक इंडिपेंडेंट और 2 को आप डिपेंडेंट वाले को जो है आप उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कर लें। नो, दैट विल ओनली बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या ऐसा ना हो कि वो सारे इंडिपेंडेंट हो तो आप उसको जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिक्लेयर कर दें। ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कन्वर्जन में जब आप जाएंगे तो आपका जो पार्ट बनेगा उसमें आपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के लिए आपके पास जो है, अब देख लें इसमें हमारे पास जो है एक वो कंजंक्शन ऐड हो रही है जो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज बना रही है, ठीक है, और एक वो कंजंक्शन ऐड हो रही है जो आपको डिपेंडेंट क्लॉज बना रही है। एंड की वजह से ये इंडिपेंडेंट रहा, लेकिन बिकॉज की वजह से ये डिपेंडेंट बन गया, तो दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहां पर 4 काइंड जो है वो तो कंप्लीट हो जाती हैं, इनकी आगे फर्दर थोड़ी बहुत सब डिविजन्स भी हैं, मोस्टली वो कंपाउंड सेंटेंस में है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये जो क्लॉजेस का टॉपिक है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा, और क्योंकि हमने क्लॉज स्टार्ट किया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज किया, इसके बाद हमारे पास जो क्लॉज की मेन काइंड्स हैं इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, और नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप में वो उसके हवाले से भी पूछते रहते हैं। बाज़ दफ़ा वो एक आध वर्ड इंडिकेट कर देते हैं, कभी पूरा सेंटेंस हाईलाइट कर देते, पार्ट इंडिकेट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा अब नेक्स्ट, उसके साथ साथ विल कम टू अवर यूनिट 6.3 विच इज अ पोएम, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आपसे एक बार फिर ये चीज आपको रीइटरेट करूंगा कि आप इन चीजों को डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली। यही आपका जो है वो पेपर है आपका, ये दिस इज योर मेरिट लेवल, और एक एक नंबर के लिए यू हैव टू फाइट।
और ये चीज़ जो है आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। आई होप दिस टॉपिक इज एब्सोल्युटली क्लियर। थैंक यू सो मच।